Okay, Ankit, let us go ahead with your mock for machine design for IUCL, right? Yes. So, okay, Ankit, first of all, let me know, uh, do you know about fluctuating stresses? Yes, sir. So what is the difference between static stresses and fluctuating stresses? Yes, sir. Sir, fluctuating stress is basically when the stress magnitude changes such that, sir, when the stress changes with respect to time, then it is said to be the, then its one special case comes to be the fluctuating stress condition. Mhm. And what about static stress? Sir, static stress. Sir, body pressure, when the body is acted upon the constant loading condition, the in that condition, the stress developed is called the static stress. Okay. So how the material's response is different in static and fluctuating stresses? Sir, in case of static stress condition, the material's response depends upon which type of material is it, uh, whether it is brittle or ductile. In case of ductile material, ductile material on the static loading condition, ductile material fails in the form of cup and cone failure when it is subjected to tensile loading, and it fails due to crushing when it is subjected to compressible loading. When this goes to the dynamic stress condition, then the failure occurs due to crack initiation, crack propagation, and then fracture happens. Means sudden fracture will take place in case of dynamic loading, while in static loading, the fracture can be seen initially. Like the necking will take place and then fracture occurs. Mhm. So let us say you are having two materials, brittle and ductile, and they are getting subjected to fluctuating stresses. Yes, sir. Will they respond in the same way or differently? सर डिफरेंट वे में सर रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि डक्टाइल में सर डक्टाइल मटेरियल क्या करता है सर, जैसे सर जहाँ पे स्ट्रेस कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है वहाँ पे लोकल डिफॉर्मेशन हो जाता है जिससे स्ट्रेस कंसेंट्रेशन फैक्टर कम हो जाता है. तो डक्टाइल मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू अ फैटिग लोडिंग, तो उस केस में सर उसका सर फेलियर सर देर से होता है कंपेयर टू ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि सर लोकल सर डिफॉर्मेशन विल टेक प्लेस. Local deformation means what? सर जैसे सर किसी भी सर क्रॉस सेक्शन में एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन है तो अपन कहते हैं उस एरिया पे मेरा स्ट्रेस कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा. सर मटेरियल मेरा डक्टाइल है तो उस एरिया में डक्टाइल मटेरियल का डिफॉर्मेशन हो जाएगा. उस एरिया में डिफॉर्मेशन होने के कारण जो मेरा स्ट्रेस कंसेंट्रेशन है ना सर, उसका इफेक्ट उतना डेंजरस नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल दैट आई एम सेइंग. Okay. So you mean to say that there is a very less effect of fluctuating stresses on the ductile material compared to brittle materials, right? हाँ सर, Because ब्रिटल मटेरियल कंपैरिजन में कम रहेगा. they respond in a different way to the fluctuating stresses. यस. Okay, let us say if you're having a component which is, let us say, subjected to completely reverse stresses, that's a completely reverse axial stresses. How are you going to design that component? Sir, first of all, in that component, we will find the maximum stress. In that component, I will find the minimum stress. Then I will find the mean stress, maximum plus minimum by 2. Then I will also find the stress amplitude, maximum minus minimum by 2. In that condition, depending upon the theory for which I will have to design, because since it is subjected to a fatigue loading, so we will design as per the theories like whether the material is brittle, then we will apply the Goodman criteria. Whether material is ductile, we will apply the Soderberg criteria. So depends upon the theory, we will design that component by finding the mean stress and the stress amplitude. So, do you know the difference between completely reversed stresses and the fluctuating stresses?
Sir, in case of completely reverse stresses, the magnitude of the maximum stress and the minimum stress is same, while it is not same in case of fluctuating stress. सर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस के केस में जो मेरा मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम स्ट्रेस का, जो कि टेंसाइल हो, या और दूसरा जो उसका मैग्नीट्यूड होता है मिनिमम स्ट्रेस, जो कि मेरी कंप्रेसिबल हो सकती है, दोनों का सेम रहेगा इन केस ऑफ कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस। तो मैं कह सकता हूँ सर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड जो मेरा मीन स्ट्रेस होगा वो 0 होगा इन केस ऑफ कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। So let us say अगर मैंने क्या करना है, एक component है, if I want to design it for completely reversed stresses and the other component which I want to design for fluctuating stresses. So how that design is going to be different, how that approach is going to be different, and how you're going to design it. So basically, in case of fluctuating stresses, we say it is a generalized statement that when the stress amplitude is more, then the basically loading is severe, loading is danger. In case of completely reverse stresses, the mean stress comes to be 0. So the term in any equation will become the 0. Mean stress upon ultimate stress in case of Soderberg criteria, mean stress in case of Goodman criteria, or mean stress by yield stress in case of Soderberg criteria. This term will become 0 in case of completely reverse state of stresses, while this is non-zero in case of fluctuating stresses. So here comes the difference in designing of in this type of stresses. Okay. So let's say if you are having a shaft को आप normally design किसके लिए design करते हो? What kind of loading you normally design a shaft? सर शाफ्ट को सर बेसिकली कंप्लीटली रिवर्स स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस की कंडीशन में डिजाइन किया जाता है। Okay. आपने have you heard about the bearing? Yes sir. So what is bearing? क्या पर्पस है bearing का? Bearing is a machine element which is used to support, to align, and to prevent the motion in the direction of applied load, and to support any rotating components like shafts, axles. This is the main purpose of bearing, and to prevent any movement in the direction of external loading, applied loading. Let us say if you have large axial load as well as large radial load acting on in a machinery or in a component. So what kind of bearing would you prefer? Anti-friction bearing. Anti-friction bearing. Why? Sir, because general bearing is able to bear radial load only, not axial load. That's why we will prefer that. General bearing means what? Sir, general bearing means basically a shaft, when shaft is put in any hole in the presence of lubricating system, then this comes to the condition of the general bearing. Or when the hole is not available, we put in the plumber block. Okay, anti-friction bearings में कौन सी? Sir, anti-friction bearing is a tapered roller bearing. Why? Sir, because in anti-friction bearing, they are broadly classified into two categories: ball bearing and the roller bearing. Since a ball bearing has point contact, so it bears the less load compared to roller bearing. So here we prefer the roller bearing. In roller bearing also there are the four categories. Sir, four categories. First one is the cylindrical roller bearing, which is able to bear the radial load only. So we will not use that. Second, in all the roller bearing, tapered roller bearing is the best one to which supports the maximum impact fatigue load which can bear. That's why I told that why we will use a tapered roller bearing. Again, the explanation that you gave, can you repeat it? The last sentence, please repeat it. Why will you use the tapered roller bearing to carry large axial and large radial loads? सर मैंने ये कहा कि रोलर बियरिंग में भी मेरे चार कैटेगरीज आती हैं, उन चार कैटेगरी उसमें स्पेसिफिक बताओ कि व्हाई टेपर्ड रोलर बियरिंग ओनली फॉर रेडियल. Tapered roller bearing is able to bear the largest radial or as well as the axial load, and it has the good
It can bear the highest impact and as well as the fatigue load in among all the roller bearing. That's why it told the tapered roller bearing when space is not the constraint. Highest fatigue and what else? Sir, impact type load. Why impact and highest fatigue load? Sir, as basically we study in the machine design that there are 4 types of roller bearing. First one, sir, the cylindrical roller bearing is able to bear the radial load only and the highest radial load, but not axial load. As you give in the question, sir, we have to bear both the axial as well as radial load. So I reject the cylindrical roller bearing. Needle roller bearing also bear the high impact as well as fatigue load, but it bears. Ankit, my question, very specific question to you is why you are saying that they will be able to carry high impact and high fatigue load among all the bearings that you mentioned? That is my question. I'm not talking about other bearings. Very specific. Why you mentioned that they will carry high impact and fatigue load? Sir, actually, I'm not sure about that. Sir, can I guess? Go ahead. Sir, basically, due to its shape, sir, it can bear the highest fatigue load. So how it's shaped? Sir, it is something like the tapered roller. So when we talk about the tapered roller, sir, sorry, sir, I don't know about it. Okay, Ankit, let me just give you the feedback now. Okay. Yes, sir. अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपका जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस का टॉपिक है ना, दिस इज नॉट रिवाइज्ड. आपने रिवाइज नहीं किया, उसको तैयार किया है आपने? नहीं सर, अभी करना है. तो ये तो इसमें तो आप सारे कंसेप्ट यहाँ के वहां कर रहे हो. ठीक है, तो जैसे मैंने शुरुआत की थी आपकी कहाँ से, स्टैटिक और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस में क्या फर्क है? चलो दैट मे बी ओके. यस सर. हाउ द मटेरियल response is different in brittle and ductile materials. ठीक है, आपने पहले कहा कि हाँ, कि फ्लक्चुएटिंग लोड में डक्टाइल और ब्रिटल जो है वो दे रिस्पॉन्ड इन ए डिफरेंट मैनर. ठीक है, और उसमें आप जो है वो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को ले आए, देन यू टोल्ड मी अबाउट कि उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा एंड ऑल दैट. सी, in case of fluctuating stresses, static loading के केस में they behave entirely in a different way because significant yielding होती है ductile materials में. brittle में you know there is no. तो अगर हम static loading की बात करेंगे और अगर मान लिया there is a discontinuity in the material, तो local yielding हो जाएगी. लोकल यील्डिंग हो जाएगी तो आपने कहा कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट कम हो जाएगा. ठीक है, बट दैट इज द केस व्हेन इट इज ए स्टैटिक लोडिंग. सर ठीक है सर. बट व्हेन इट इज ए फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, then the failure of the material starts with a crack somewhere within the material. If that be the case, then irrespective of whether the material is ductile or brittle, both behave in the same manner. दोनों का रिस्पॉन्स फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए अलग नहीं है, सेम है. क्रैक से हुआ, even the ductile material जो फाइनल फेलियर होगा, that will look like as if it has failed like a brittle material. हाँ सर. ठीक है, तो आपने तो ये सारा मिक्स कर दिया सर. उसको. ये हाँ सर, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया सर. पूरा ही चैप्टर ऊपर नीचे किया हुआ आपने ये. फिर आगे गए, फिर मैंने कहा चलो ये बताओ कि मटेरियल है जिसको मैंने सब्जेक्ट किया कंप्लीटली रिवर्स एक्सियल स्ट्रेसेस में. सो हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन दैट कंपोनेंट. अब आपने यू डिडंट डिफरेंशिएट बिटवीन द कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस एंड फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस. When you are talking about the completely reverse stresses, you make use of the SN diagram. Yes, sir. करते हो यूज उसका? किसके लिए डायग्राम ड्रॉ किया आपने? वो आपने ड्रॉ किया वो कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए. हाँ सर. तो आप अगर कंपोनेंट सब्जेक्ट ही कर रहा है आपको कंप्लीटली रिवर्स एक्सियल, कोई भी हो सकती है. ड्रॉ तो आपने बेंडिंग किया, पर बेंडिंग से डायरेक्टली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एक्सियल में बाय मेकिंग यूज ऑफ ए फैक्टर.
तो जब भी कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस की बात आती है, वेदर दे आर एक्सियल और वेदर दे आर बेंडिंग और वेदर दे आर टॉर्शनल, वी मेक यूज ऑफ द एस एन डायग्राम। उसमें भी डिपेंड करेगा आप if you are want to design it for infinite number of stress cycles or finite number of stress cycles. That means endurance limit becomes the criteria in case of completely reverse stresses. आपने बोला नहीं जी यहां पर क्या होगा कि ब्रिटल मटेरियल होंगे तो गुडमैन यूज करूंगा, डक्टाइल होगा तो सॉडरबर्ग यूज करूंगा। तो मैंने तो आपको फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस एग्जांपल दिया ही नहीं, मैं तो पूछा कि कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस के लिए कैसे डिजाइन करोगे। फिर मैंने दोबारा जो है बाद में रिपीट किया कि लेट अस से इफ इट इज अ केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस, तो कैसे डिजाइन करोगे। आई डोंट नो, मैं भूल गया वो क्वेश्चन क्या पूछा था, पर इसी लाइन पे था। देन आपने कहा कि अच्छा पहली बात एक और, हाँ लेट्स से इट इज अ कंप्लीटली से फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस का अगर मैंने पूछा डिजाइन करने के लिए, तो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस के लिए आप यूज करते हो सॉडरमैन या गुडबर्ग, सॉडरबर्ग हो गया, गुडमैन हो गया, या सॉडरबर्ग, गुडमैन और तीसरा कौन सा है, गर्बर, इन तीनों को यूज करते हो। क्यों? क्योंकि आपका मीन भी है वहां पर और एम्पलीट्यूड भी है, ठीक है। तो उस केस में इन तीनों को यूज करते हैं। और तीनों को यूज करने के लिए कोई ऐसी वो नहीं है कि आप बोलोगे ब्रिटल के लिए मैंने गुडमैन यूज करना है। क्यों गुडमैन यूज कर रहे हो? क्योंकि एक एंड पे जो है आपने अल्टीमेट रखा हुआ है। हाँ सर, दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया। उससे ब्रिटल का दोनों डक्टाइल और ब्रिटल तो सेम वे से बिहेव करते हैं फ्लक्चुएटिंग में। ठीक है सर। वो तो दोनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं। तो व्हाई शुड आई से कि गुडमैन का, जस्ट बिकॉज कि एक लिमिट मैंने स्टैटिक लोडिंग की, वो अल्टीमेट क्या है गुडमैन में, क्योंकि वो स्टैटिक है। अगर मैं मान लिया प्योर स्टैटिक लोड होता और अल्टीमेट क्राइटेरिया लेता तब है, तो वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। वी आर सब्जेक्टिंग टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग, मीन भी है उसमें और फ्लक्चुएटिंग भी है। यस सर। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल, पहली बात तो ये, वी कैन मेक यूज ऑफ द गुडमैन, वी कैन मेक यूज ऑफ द सॉडरबर्ग, वी कैन मेक यूज ऑफ द गर्बर। बट फर्क कहाँ है? फर्क है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने कंजर्वेटिव हैं, कितने करेक्ट है, कितना कंजर्वेटिव। यस सर। कितने पास हैं एग्जैक्ट रिजल्ट्स के। यस सर। सॉडरबर्ग हम बोलते हैं दैट इज कंजर्वेटिव इन द सेंस कि वो बहुत सेफ अपने को प्ले करता है। फिर गुडमैन एंड द बेस्ट वन इज इन दिस केसेस गर्बर। ऐसे आपका जो है आंसर होना चाहिए। तो ये इसको रिवाइज करो ढंग से, क्योंकि ये चैप्टर मतलब ढंग से इसको करोगे तभी आंसर कर पाओगे, नहीं तो वो सारी चीजें आप मिक्स कर दोगे, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ का वहां हो जाएगा एंड ऑल दैट। ठीक है, ठीक है सर। हाँ तो इसको रिवाइज करो। हाँ मतलब इतने डेप्थ में मुझे नहीं लगता वो जाएंगे आईयूसीएल में, बट आप अपने तरीके से थोड़ा सा कुछ एक ही टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर वो पूछ सकते हैं कि जनरल जैसे है आपका शाफ्ट का पूछ लिया, बीरिंग का पूछ लिया। सो ठीक ये है कुछ एक टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर वो जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट फिर भी उसको थोड़ा सा देख लो, क्योंकि गलती से अगर उसने पूछ लिया कि बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपने बता दिया डिजाइन है, तो फिर वो मान लिया गलती से उसमें कोई प्रोफेसर बैठा है, पैनल में कई बार प्रोफेसर को बिठा देते हैं, तो वो हो सकता है आपको थोड़ा इन डेप्थ लेगा, पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ये ध्यान रखना जी सर। कि आप पीएसयूज में वो इन डेप्थ बहुत ज्यादा जाते नहीं है। बट जो क्वेश्चन अगर पूछा उसने, जैसे शुरू में उसने पूछ लिया कि मान लिया कि स्टैटिक और उसमें क्या फर्क है, अगर वही आंसर आपका गलत हो गया तो सारी उसके आगे तो वो जाना ही नहीं है वैसे भी उसने, पर उसी के बेसिस पे वो ओपिनियन जनरेट कर लेगा, इसको पता ही नहीं है, समझे। तो उस चीज को करेक्ट करना है, उसमें वो परसेप्शन नहीं जानी चाहिए। सर, हाँ बोलो। सर स्टैटिक और डायनेमिक अपन स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो फर्क तो ये बनेगा सर। स्ट्रेस सर लोडिंग कांस्टेंट है, स्टैटिक स्ट्रेस जनरेट होगा। लोडिंग यदि मेरी वेरी कर रहा है, हाँ डायनेमिक स्ट्रेस जनरेट होगा सर, यही बोलेंगे ना सर ऐसा। ना, वो तो ठीक है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो वो तो ठीक हाँ बोला आपने, हाँ, उसमें मैं कोई वही दिक्कत नहीं है, तो। वो तो ठीक है ठीक सर। है, उसको तो मैंने बात ही नहीं की कि टाइम के साथ मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है स्ट्रेस का, जी सर। बस। ओके, फिर आ जाते हैं बीरिंग के ऊपर। इवन बीरिंग के ऊपर कुछ एक आंसर आप ठीक दे रहे थे, बट आप क्या कर रहे थे, यू आर उसको ज्यादा बता रहे, बहुत स्पेसिफिक नहीं हो रहे थे। आंसर आपने ठीक है, मतलब मोर और लेस लॉजिक कुछ एक शुरू वाला जो आप ठीक बता रहे थे, बट स्पेसिफिक रहो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10-15 अगर 15 मिनट का इंटरव्यू है उसके लिए आपको कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद टाइम ही नहीं है, वो बोर हो जाएगा, उसे लगा कि पूछ मैं क्या रहा हूँ, ये आंसर क्या दे रहा है, समझ रहे हो। सही बात है। 15 मिनट में मतलब पूछा, स्पेसिफिक आंसर, बात खत्म। और अगर प्रॉब्लम आप खत्म। यहाँ वहां करने गए तो वो टाइम, क्योंकि उसने आपके लिए रखा ही 15 मिनट होगा, क्योंकि अगर कैंडिडेट इतने हैं तो उसे तो आपको 15 मिनट में बाहर निकालना है। तो घड़ी सामने है, उसको पता है कि मैंने बस हो गया। अगर आपने 10 मिनट में 2 क्वेश्चन के लिए लगा दिए यहाँ वहां घुमाने के लिए,
अगले क्वेश्चन जिसके ऊपर हो सकता है आपका इंपैक्ट पड़ने वाला होगा वो पूछेगा ही नहीं, उसी के बेसिस पे उसने आपको रिजेक्ट कर देना। तो इसलिए इस चीज से अवॉइड करना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि अगर मैंने लार्ज एक्सियल और लार्ज रेडियल लोड कैरी करना है तो कौन सी बीरिंग सुटेबल रहेगी। अब आंसर तो लास्ट में भी आपने वही दिया, आपने बोला जी बीरिंग है, तो ये तो आप पहले भी दे सकते थे, आपने 2 मिनट घुमाया इसके लिए, 3 मिनट घुमाया उसके लिए, फिर मैं दोबारा पूछने लग गया एंड ऑल दैट। क्यों? आप बोलो जी इसको हटा दें, उसको हटा दें, इसके ऊपर नहीं है, आप बोलो टेपर्ड रोलर बीरिंग। अगर वो पूछता है क्यों, तो आप बोल दो सिंपल सी बात है कि टेपर्ड रोलर है, एक एक्सेल डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, एक तो लाइन कॉन्टेक्ट है इसलिए लार्ज लोड कैरी करता है, रोलर है इसलिए रेडियल लार्ज लोड रेडियल है, क्योंकि मैंने टेपर कर दिया इसलिए लार्ज एक्सेल कैरी कर सकता है, जो बाकी नहीं कर सकते। टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, ठीक है, क्योंकि उससे उस आइडिया हो जाएगा इसको पता है कि नहीं, बाकी नहीं जाएगा वो। अच्छा, एंटी फ्रिक्शन बीरिंग और फिर आप जनरल बीरिंग में चले गए। जनरल बीरिंग मतलब उसको स्पेसिफिक आया था, ठीक है, वो बोल सकते थे आपकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बीरिंग एंड एंटी फ्रिक्शन बीरिंग है, मुझे लगता है तो ये मोस्ट स्टेबल रहेगी, क्योंकि ये सिचुएशन है, बात खत्म, ठीक है। एंड फिर अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं बोलनी है जस्टिफाई करने, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए जिसमें आप फंस जाओ। जी सर। जैसे आपने एक लाइन बोली, आपने बोला कि आई थिंक हाईएस्ट जो है वो इंपैक्ट और फैटिग लोड कैरी करते हैं ये इन सब बीरिंग में, पकड़ लिया मैंने, तो मुझे पता था आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप इसको लॉजिक क्या है, लॉजिक आप दे ही नहीं सकते उसमें। या तो फिर आपके पास कोई ऐसा ऐसा डेटा हो जो एक्सपेरिमेंट हो चुके हों और इट इज प्रूवन कि ये हाई इंपैक्ट और फैटिग लोड कैरी कर सकती है, वो आपके पास नहीं है। सही बात। इसीलिए वो आपने फंस गए उसमें कि शेप, मुझे लगता है कि शेप। सो ध्यान रहे कि इंटरव्यू में ये चीजें जानबूझ के अवॉइड करनी है आपने। ठीक है आंसर सर। दे दिया, बात खत्म है, ऐसी चीज नहीं बोलनी, क्योंकि वो फंस जाओगे, क्योंकि वो तो बैठा है उसके लिए, उसने तो क्वेश्चन पूछना है ना आपसे, मैं ठीक किस है। लिए बैठा हूँ, मेरा काम है क्वेश्चन पूछना, और क्वेश्चन वहां पर जहां पर मुझे लगता है कि आप जो है कोई, और उसके लिए स्टिक नहीं करना, फेक नहीं करना है, तो इन्हें मैंने पता फंस गए, सो आई थिंक आई मना। मे बी रॉन्ग, ऐसे बोलो सर, आई थिंक इवन दो आई हैव सेड आई मे बी रॉन्ग। और जब आपने ये बोल दिया ना आई मे बी रॉन्ग, तो उसको मे बी वो बोलेगा कि हाँ हो सकता है कि इसे लगा, बट उसने उस वक्त बोल दिया होगा। बट अगर आप फंसे रहे तो आप बोलते नहीं सर कहना, जैसे आपने बोला कि ये हो सकता है रीजन, अब वो रीजन भी गलत था, तो शुरू वाला गलत था तो नेक्स्ट भी फिर गलत ही होगा, मतलब क्योंकि वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो ठीक है अंकित, एक काम करो, इसको रिवाइज करो, जो नेक्स्ट मॉक दोगे तो रिवाइज करके दो, ठीक है ऐसे सर। नहीं देना है, नहीं तो फिर मतलब आपको आपकी रियल असेसमेंट नहीं होगी भाई, खुद की असेसमेंट नहीं कर पाओगे ढंग से, ठीक है। तो 2-3 टॉपिक अच्छे से कर लो अगर करनी है आपने एमडी में एक तो शाफ्ट का कर लो, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस का कर लो, मतलब जो फटीग लोडिंग क्या होती है, यस सर। क्या कहते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेसेस क्या होती हैं, जैसे गियर्स में होता है थोड़ा बहुत, अगर देखना है जनरल देखना है। देन बीरिंग्स का देख लो, मुझे लग रहा है जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। लुब्रिकेशन, क्योंकि आप इंडियन ऑयल के लिए जा रहे हो तो लुब्रिकेशन, ये टॉपिक लुब्रिकेशन से रिलेटेड है पूरा, ठीक है। हाँ। तो ये हो सकता है वो मिक्स कर दे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और उससे सब मिक्स हो जाए। हाइड्रोडायनेमिक बीरिंग है तो सारा वो कंसेप्ट जो आपका कहाँ लिंक हो जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स से भी रिलेट हो जाएगा, विस्कोसिटी आ जाएगी बीच में, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड ऑल दोस, तो वो ऐसे टॉपिक पढ़ लो। क्लच हो गए, ब्रेक हो गए, ऐसे जनरल जो जितना कर आप बेसिक देख सकते हो ऐसे जनरल वो देख लो, मतलब उनके बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछ सकता है, बट इन टॉपिक्स को जरूर रखो, ठीक है। ठीक है ओके अंकित, सो प्रिपेयर एंड देन अपीयर फॉर द नेक्स्ट मॉक आफ्टर प्रिपेयरिंग, राइट। ठीक। सर ये पूछना है मेरे को, सर प्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत है क्या सर? प्रोडक्शन पढ़ो, पूरा रिवाइज कर लो करना पूरा। पड़ेगा सर प्रोडक्ट? हाँ, क्योंकि रीजन ये है कि पब्लिक सेक्टर में वो रैंडम क्वेश्चन पूछता है, अच्छा। मतलब मैंने कहा ना कि जैसे मान लिया आप एमटेक के लिए जा रहे हो या रिसर्च के लिए जा रहे हो तो वो टॉपिक ले लेगा, टॉपिक में घुसा जाएगा अंदर, यस सर। पर यहाँ पर वो आपकी एक पर्सनालिटी चेक करता है, पीएसयूज में उसको ओवरऑल पर्सनालिटी चाहिए, उसको ऐसा भी चाहिए कि टेक्निकल भी इसका ठीक है, कॉन्फिडेंटली आंसर कर पा रहा है, और साथ में बाकी एक्टिविटीज में ही लुक्स लाइक स्मार्ट इन द सेंस की चीजों को हैंडल कर सकता है, प्रॉपर आंसर, एचआर के क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली आंसर करते हो एंड ऑल दो। तो उसको ओवरऑल पर्सनालिटी वाला चाहिए बंदा। टेक्निकल तो उसने देख ही लिया होगा, क्योंकि आपने जो है मतलब इन द सेंस की जो गेट के थ्रू बॉल है ना, हाँ सर। गेट के थ्रू उसको पता ही है कि थोड़ा बेसिक तो है ही, बाकी वहां पर आप कैसे उसको जो क्वेश्चन पूछता है उसको आंसर कर पाते हो, वो उसने थोड़ा सा देखना है, आपका कितना कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंस कितना डिस्प्ले करते हो। तो ओवरऑल देख लो, रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है वो, ठीक। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग जस्ट रिवाइज इट, बहुत इन डेप्थ ना जाके, बट एटलीस्ट
इतना लेवल हो, कुछ एक सब्जेक्ट तैयार कर लो थोड़ा ठीक आपको लगता है कि मैं अगर मान लिया उसने पूछ लिया आपसे, यस सर। अब ऑयल से रिलेटेड है तो हो सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह इस तरह कुछ देख लो, लुब्रिकेशन वगैरह देख लो, थोड़ा रिलेटेड हो, तो जो आपने बता दिया कि हाँ मुझे मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो हो सकता है उससे क्वेश्चन थोड़ा एक दो ज्यादा पूछ। ठीक है, थैंक यू सर। ओके अंकित, यस, ओके। थैंक यू।